محرم الحرام 1442 عیسوی کا چاند نظر آ گیا۔ تمام عالم سوگ میں ڈوب گیا ہے۔ چاند رات کی مناسبت سے برمنگھم کی حسینیہ مسجد میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ذاکرین نے نوحہ خوانی کے ذریعے امام حسین کو پرسہ دے کر علم عباس بلند کیا۔ اس دوران عالم اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ مزید احوال عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چودہ سو 42 عیسوی محرم الحرام کی مناسبت سے گزشتہ روز ادارہ معارف اسلام برمنگھم حسینیہ مسجد کے باہر پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، جس کے دوران ذاکرین نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کے ذریعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو پرسہ دیا۔ کورونا وائرس کے ساتھ یہ پہلا محرم ہے جس دوران برمنگھم سٹی کونسل نے حسینیہ مسجد ریجنٹ پارک کو تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ 600 آدمیوں کی مجلس کروانے کی اجازت دی ہے۔ حسینیہ مسجد کی انتظامیہ نے تمام افراد کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کر کے ان کو کارڈ جاری کیے ہیں، اور جس کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہوگا وہی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکے گا۔ گورنمنٹ کی جو ہدایت ہے اس پہ مکمل عمل کرتے ہوئے، جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کا مکمل خیال کرتے ہوئے ہمیں اجازت ملی ہے۔ جیسے 600 لوگوں کی، اس کے لیے ہم نے یہاں پہ مارکی کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے پاس بینکویٹ ہال ہے اور ہمارے پاس جو مین ہال ہے اس میں ہم نے جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کا مکمل طور پہ خیال رکھا ہے۔ اس موقع پر عشرۂ محرم پڑھنے والے معروف عالم دین مولانا سید نجم الحسن نقوی اور ترجمان سجاد حسین نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے تمام مومنین سے گزارش کی ہے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ مجلس میں شریک تمام افراد اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ محرم در حقیقت پاکیزگیوں کی معراج، محرم در حقیقت عبادت کی معراج، بندگی اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے تقرب یعنی خدا کا قرب ہے۔ پروردگار ہمیں انشاءاللہ اس محرم میں اس حقیقت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر کی طرح برمنگھم میں بھی محرم کا چاند نظر آتے ہی سادات و مومنین کے گھروں سے گریہ و بقا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہر جا ایک ہی صدا سنائی دے رہی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برطانوی شہری جگتار سنگھ جویل کو بھارت میں قید 1020 دن مکمل ہو گئے۔ سکھ کمیونٹی کی جانب سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فری جگی ناؤ کیمپین کے تحت ہونے والے اس مظاہرے میں برطانیہ بھر سے سکھ برادری نے شرکت کی اور انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانوی شہری جگتار سنگھ جویل بھارت میں قید کے 1020 دن مکمل ہونے پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت نے جگتار سنگھ کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم یہاں وزیر اعظم بورس جانسن کو یاد کرانے آئے ہیں، بھارت میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سکھ تنظیموں کے لیڈروں نے کہا کہ گزشتہ 1000 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا، اس لیے آج ہم ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مظاہرہ کرنے آئے ہیں۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی کوئی برطانوی شہری کہیں پکڑا جاتا ہے تو برطانوی حکومت 1 یا 2 اراکین پارلیمنٹ کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ اسے کسی طرح واپس لایا جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ برطانیہ میں پیدا ہونے والے جگتار سنگھ کو بھارت کی قید میں 3 برس ہو چکے ہیں۔ جی آپ جگی نو واپس لے کے آنا وا یہ آواز ہور بلند ہونی ہے۔ ایک تو علاوہ بےنتی یہ ضرور ہے کہ جگی کلا نہیں۔ شرکا نے بھارت کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے بھی بلند کیے۔
और बरतानवी हुकूमत से जगतार सिंह जवेल की रहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जगतार सिंह के भाई गुरबेत सिंह ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन के नाम खत में कहा कि जगतार सिंह की गिरफ्तारी को 1020 दिन गुजर चुके हैं और इन्हें भारतीय हुकाम बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। खत में यह भी कहा गया कि जगतार सिंह का मीडिया ट्रायल किया गया, इसके बावजूद बरतानवी हुकूमत इन्हें मुनसिफाना ट्रायल का मौका नहीं दिला सकी। जगतार सिंह 133 इब्तिदाई समातें और 47 मुकदमों की तारीखें भुगत चुका है। इन्हें इंतहाई सिक्योरिटी के साथ तहार जेल में रखा गया है, जहां इन्हें अजीज़ो कारब से न मिलने देकर जहनी अजियत भी पहुंचाई जा रही है। कोरोना वायरस के बायस लंदन में पाकिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीबात का महदूद पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिनमें शुरका ने पाकिस्तान की सालगिरह की खुशी को शायान शान तरीके से मनाया। तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है और जश्न आज़ादी भरपूर जोश खरोश से मनाई जा रही है। कोविड-19 की वजह से तकारीब इंतहाई मुख्तसर रखी गई। लॉकडाउन की वजह से चंद तकारीब का ही एहतमाम किया जा सका, जिसमें समाजी फासले को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। ऐसी ही एक तकरीब में मौजूद कौंसलर कैसर अब्बास का कहना था कि आज हम इन लोगों की कुर्बानियों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इनका मजीद कहना था कि हम आज कश्मीरी लोगों को भी याद कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान से इल्हाक का का दरीना मुतालबा भी पूरा होना चाहिए। हमें मजहब, रंग, नस्ल और इलाकाई सोच को छोड़कर पाकिस्तानियत को फरोग देना होगा। नई तंजीम साजी के बाद पहली बार मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुश्तरका तौर पर यौम आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। नून लीग UAE और गल्फ की क़यादत ने इस मौके पर इस अज़्म का इजहार किया कि माजी की तलखियाँ भुला कर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया जाएगा। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। तलखियाँ ख़त्म, रस्सा कशी का खात्मा। मुस्लिम लीग नून UAE और गल्फ के तमाम धड़े चौधरी एहसान उल हक बाजवा की क़यादत में इकट्ठे हो गए। दुबई में नून लीग UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मेज़बानी में नून लीग UAE और गल्फ की बैठक हुई। इस मौके पर UAE में मुकीम गुलकारों ने इंतखाबी और कौमी तराने गाकर जश्न का माहौल बना दिया, जिस पर लीगी रहनुमाओं ने रिवायती रक्स भी किया। नून लीग गल्फ के सदर चौधरी एहसान उल हक बाजवा का कहना था, उन्हें किसी प्रोपेगेंडा की परवाह नहीं। मेरे हल्का इंतखाब चिश्तिया के रहने वालों का मुझ पर एतमाद है कि अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, नून लीग UAE और गल्फ के रहनुमा मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुल्क की खिदमत करेंगे। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और जनाब सागडार साहब ने जो फैसला किया है, तमाम UAE की बॉडी ने और गल्फ के लोगों ने तस्लीम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक प्लेटफार्म पर हैं और मिलकर सब दोस्त हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे और अपने कायद के शाना बिशाना खड़े रहेंगे। नून लीग UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, जश्न आज़ादी पर मुत्तहिदा अरब अमारात की पूरी नून लीग आज मुत्तहिद हो गई। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज मैं UAE मुस्लिम लीग नून सदर की हैसियत से आज जो प्रोग्राम हुआ, मैं समझता हूँ कि आज UAE में मुस्लिम लीग की कोई भी रहा नहीं है, सारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस मौके पर सारे दोस्त और साथी यकसुई के साथ यकजा हुए और मैं पूरी कौम को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पार्टी के UAE में जनरल सेक्रेटरी चौधरी जफर इकबाल, अब्दुल मजीद मुग़ल, सरदार आसिफ करीम, शौकत महमूद भट्ट और शहजाद भट्ट समेत दीगर ने भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। आज सब दोस्त भाई एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं और मैं दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह आइंदा भी इकट्ठे रहें, मिलजुल कर रहें। पार्टी की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम सर अंजाम दे सकते हैं, जो खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, वो देते रहें। 3-4-5 महीने जो कश चली है ना, उसका आज रिजल्ट आपके सामने आया है। हर आदमी का दिल बाग बाग है और हर आदमी इस इवेंट के ऊपर राज़ी भी हो गया है, खुश भी हो गया है और मेरा ये 14 अगस्त की बरकत के प्रोग्राम की वजह से हुआ है। तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है आज इकट्ठी हो गई है एक छत के नीचे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह
पहले ये एक गुलदस्ते की तरह थे, उसी तरह ये दोबारा एक गुलदस्ते की तरह जनाब दोबारा लोगों के सामने अपनी खदमत पेश करेंगे। मैं अपनी तरफ से सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने तमाम मुसलमानों भाइयों को और तमाम पाकिस्तानी भाइयों को सबको मुबारकबाद मैं कहना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ इस किस्म के इवेंट जो हैं वो हमेशा जद्दोजहद से वो मनाने चाहिए। आखिर में गुलाम मुस्तफ़ा मुगल और एहसानुल हक बाजवा के हमरा नून लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल, चेयरमैन यूएई नून लीग गौस कादरी, सीनियर नायब सदर चौधरी अब्दुल गफ्फार और दीगर ने पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। सदी के मारूफ अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दास्तान गो अशफाक अहमद अगर जिंदा होते तो आज अपना 95वां यौम पैदाइश मना रहे होते। इतने साल गुजर जाने के बाद भी अदब के दरीचों में अशफाक अहमद का खिलाफ पुर नहीं हो सका। अशफाक अहमद की सालगिरह पर लाहौर से इमरान राज की ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू अदब की तारीख अशफाक अहमद का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। अफसाना, ड्रामा और नसर निगार अशफाक अहमद फिरोजपुर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इटली की रूम यूनिवर्सिटी और ग्रे नोबले यूनिवर्सिटी फ्रांस से इतालवी और फ्रांसीसी जुबान में डिप्लोमे किए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। अशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफक पर नुमाया हुए और 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। 1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया, जो 30 साल से जायद अरसा ऑन एयर हुआ। अशफाक अहमद ने मुआशरती और रूमानी मौज़ूआत पर एक मोहब्बत 100 अफसाने के नाम से एक ड्रामा सीरीज लिखी। उनकी सीरीज तोता कहानी और मनचले का सौदा आवाम में बहुत मकबूल हुई। इस वाक़े में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूज़ा गर और खुद गिले कूज़ा। सहाफ़ी और दानिश्वर अशफाक अहमद को फिक्र और फ़कीरी से इश्क था। उर्दू अदब के क़ारीन हमेशा अशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर।